शादी का क्या प्लान है? मैंने कहा पहले हम फंडिंग की बात करें, उसके बाद शादी की बात करें. यू नीड टू बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. दिस वर्ल्ड इज नॉट फॉर वीक people out there, and that's a hard truth. You have to take charge of your life. I am not fearful about talking sex to anybody because that's a part of your life. Because जब भी पेनफुल सेक्स की बात आती है कि सेक्स करते वक्त दर्द हो रहा है एक औरत को, वो बात ही नहीं कर पाते अपने पार्टनर के साथ भी. सो वी वांटेड टू क्रिएट दैट सेफ स्पेस जहाँ पे एक औरत और एनीबडी फ्रॉम LGBTQ कम्युनिटी विल नेवर हश अबाउट देयर सेक्सुअल हेल्थ, देयर प्लेजर, देयर ट्रॉमास, ऑल ऑफ दैट. दे शुड हैव दिस वन सेफ स्पेस. जो सैसिएस्ट आपको दिख रहा है, इट्स ऑल अबाउट दैट. Use it to build something. Or just say I'm unlucky, I've got the worst person in the world. Right? It's perspective, how you're taking things, and I am a bloody opportunist. Dude, I pick opportunities like this. You take me somewhere, something like ये flower दिख रहा है, बोलूँगी यार एक flower उठा लो, मैं खुद को दे दूँगी. सेक्स तो बंद नहीं हो रहा है इंडिया में, राइट? हाँ, मुश्किल ही बंद हो. 1.4 से 1.5 पहुंचने वाले हैं. I know. राइट, हर एक सेकंड में बच्चा पैदा हो रहा है, ये तो बंद नहीं हो रहा है. Right. आफ्टर रोका सडनली अंधापन हट गया आंखों से. वंडरफुल. आपको ये नहीं लगता है वैसे ऐश्वर्या कि सेक्स टॉयज आ जाएंगे तो पार्टनर्स की जरूरत पड़नी बंद हो जाएगी आफ्टर पीरियड ऑफ टाइम? Oh no, not at all. This is a pure myth. Okay, after using a vibrator or a massager or anything of that sort, you rather feel the need of a human touch. There's nothing like plan in life, but I feel that you should know where you want to reach so that you can plan your life accordingly, so that you start living that life from day one where you want to be. So the way I talk, the way I walk, how I carry myself, it's all about where I want to reach. It will always improvise. It will not go down. It's that. So in your mind आप मान के चल रहे हो कि आप उस मुकाम पे पहुंच चुके हो. Yes. और लाइफ अभी से वैसे जीने की कोशिश कर रहे हो. Absolutely. ताकि वो नेचुरली आपके लाइफ में आ जाए. Absolutely. वेलकम बैक टू बढ़ता इंडिया देखो. एपिसोड छोड़िए, अभी तक आपने लाइक और सब्सक्राइब किया है हमारे पुराने वीडियोस को और नया एपिसोड देखने आ गए आप. चलिए सबसे पहले लेट्स गो टू दैट रेड बेल आइकन एंड प्रेस दैट टू सब्सक्राइब टू बढ़ता इंडिया देखो, and thus welcoming you to one of our most interesting episodes till date. आज हमारे साथ है ऐश्वर्या. ऐश्वर्या फाउंडर है सैसिएस्ट की. नाउ इंडिया में एक तो सेक्स के बारे में बात करना ही प्रॉब्लम है, उसके ऊपर वुमेन्स प्लेजर के बारे में बात करना उससे भी बड़ा प्रॉब्लम है. 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट नहीं, आज हम बात करेंगे पूरा 40 से 45 मिनट on how our country is changing, on how actually this is becoming a talking topic even in middle class families in tier 2, 3, 4 cities. How Aishwarya's vision of how she wants to change Bharat and then the rest of the globe and help women actually get what they deserve is in front of you. Don't go anywhere. Enjoy the episode. Aishwarya, welcome to Barta India Dekho. It's an absolute pleasure for us that you have joined us on this show. I hope you're also as excited as I am. I am super excited. Barta India Dekho, Barta India Dekho. I guess it's that. I guess I love the name, to be honest. It's a car Dekho, Barta India Dekho. It's great name for people to literally understand why this podcast exists, to be honest. As a group, we have been obsessed with Dekho in the last decade and a half. Yeah. And as you know, a lot of our brands finish with Dekho. And we were thinking of the brand name. And we were thinking of the brand name eventually. We wanted to give the audience a feel that can it show them that they can also become people like you. Yeah. And coming from tier 2, 3, 4 cities, that's where majority of our audience is right now sitting and watching this show. Wow. For them, they are always looking for inspiration to change the trajectory of their lives, right? And that's where the name also came from, that can we actually show them examples of India progressing. Yes. और वहीं से नाम आया बढ़ता इंडिया देखो. Thank you so much Love this name. For saying that. If I may ask with a slightly अलग तरीके का सवाल, आपके लाइफ का डिफाइनिंग मोमेंट क्या था? कब आपको लगा कि you are actually born for a higher purpose?
I guess I understood that when I was 21, very early in my life. बहुत अर्ली 21 में Very तो early. होश ही नहीं होता है. Yes, but लाइफ के circumstances ऐसे रहे कि वो होश थोड़ा जल्दी आ गया, to be honest. And मेरा रोका हुआ था. 21 में. Yes, मेरी मर्जी से ही हुआ था. It was about to be a love marriage, but after रोका suddenly अंधापन हट गया आंखों से, and I was like, I need to figure this out because what I'm a human being with a lot of dreams in my eyes, not only for myself but for India, to be honest. It's about catering to the nation in multiple aspects, not only healthcare that I am into in. It's also about animals. It's also about women in like general, how to take care of their lives, how they can improvise like their lives. So I want to do a lot of things in these areas. That time the things were coming to me like कि शादी के बाद काम करने का टाइम नहीं होगा, इतने सारे लोग हैं घर पे तो ज़रूरत ही नहीं होगी. And I had everything in my plate in front of me. If I have like taken that step, अगर मैंने वो शादी की होती, सब कुछ मेरे हाथों में होता. But I wanted to build of like my empire, to be honest. So I ran away to Bangalore, and I started. You ran away? Yes. The marriage didn't happen? Yes, marriage didn't happen. I literally ran away and. Was it only कि आपको काम करने नहीं दिया जाएगा या और भी था? बहुत सारी और चीज़ें थी, वो बहुत कुछ बहुत पर्सनल है, बट ये एक बहुत बड़ा मेजर पॉइंट है क्योंकि जब मैंने 16 साल की उम्र से काम करना स्टार्ट कर ही दिया है और मेरे अंदर मुझे पता है मुझे बहुत कुछ करना है, और वो शादी के लिए हाँ भी मैंने इसलिए कहा था क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि मुझे सपोर्ट मिलेगा जो मुझे काम करना है. बट देन व्हेन एवरीथिंग हैपेंड आई सॉ अ डिफरेंट साइड ऑफ दैट होल थिंग. सो फॉर मी इट वाज एन आई ओपनर. एंड रिसेंटली पापा का भी डेथ हुआ था तो it was like I have to take care of the family no matter Sorry what to hear comes. Yes, so I guess that was my turning point entirely. And then I started, I went to Bangalore for 8 months or so. And then I came back and I started my first startup. I failed that कौन सा drastically. year था ये? It was 2017. I gave 4 years into that. I started my first startup. Failed that drastically, learned from that. मतलब whatever you see me आज की डेट में वो 4 साल की जर्नी है जो मैं बोलती हूँ मैं 2 बार MBA कर लिया है. तो इट्स दैट. एंड देन Sassiest happened. किस चीज़ पे था पहला स्टार्टअप? It was into gig economy. We used to give part-time jobs to the youth and मतलब like connect them with the companies like Amazon and like Paytm on an hourly basis basically. Yeah. तो जो ये एंगेजमेंट टूटा और फिर आपने पहला स्टार्टअप ट्राई किया, these are all very transformational experiences. Yeah. राइट. और उसके बाद फाइनली आपने Sassiest शुरू किया और हम आएंगे Sassiest पे. Yeah. अब जो मेरे सामने ऐश्वर्या बैठी है वो कौन है, किस तरह की इंसान है? वो एक बहुत ही फियरलेस, एम्पावर्ड और एक बहुत ही माइंडफुल लड़की है जो स्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा लाइक बिलीव करती है. अब पहले मैं नहीं करती थी, पहले जो मन में आया जैसे मन में आया कर लिया. लेकिन आई गेस फियरलेस होने के साथ साथ स्ट्रक्चर फॉलो करना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है लाइफ में. प्लान होना इम्पॉर्टेंट है कि कहाँ पहुँचना है. देयर आर सम पीपल हु से दैट देयर इज़ नथिंग लाइक प्लान in life, but I feel that you should know where you want to reach so that you can plan your life accordingly, so that you start living that life from day one where you want to be. So the way I talk, the way I walk, how I like carry myself, it's all about where I want to reach. It will always improvise, it will not go down. It's that. So in your mind आप मान के चल रहे हो कि आप उस मुकाम पे पहुंच चुके हो. Yes. और लाइफ अभी से वैसे जीने की कोशिश कर रहे हो. Absolutely. ताकि वो नेचुरली आपके लाइफ में आ जाए. Absolutely. तो ये बहुत अच्छा तरीका है मैनिफेस्ट करने का. मैनिफेस्ट बोल लो या फिर आदत डालना बोल लो उस चीज़ की, क्योंकि वहाँ पहुँच के तो आदत नहीं आएगी. आपको आज से वो आदतें बिल्ड करनी है. और मैं ये नहीं बोल रही मैं भी सब कुछ करती हूँ, बट स्टेप बाय स्टेप आई वॉन्ट टू एड ऑन ऑल दोज थिंग्स दैट आई इमेजिन माई सेल्फ
doing at that point of time. आपके पेरेंट्स का क्या रोल रहा है इस पूरे जर्नी में? उन्हीं का रोल रहा है, टू बी ऑनेस्ट. माई मॉम इज़ अ वेरी एम्बिशियस फीमेल, टू बी ऑनेस्ट. उनको अपनी लाइफ में शायद वो चांसेस नहीं मिले हैं उस तरह के, बट उन्होंने मेरे लिए रास्ते खोल दिए हैं. सो आई गेस मॉम्स आर लाइक दैट, जो अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर देती हैं. उनके जो वो नहीं कर पाई वो उनको अपने बच्चों में देखना होता है करते हुए. आई गेस वॉट एवर आई एम, द फ्री बर्ड, fearless kid, pampered kid, because I'm really pampered by her, no matter what class we come from, but I have been pampered all my life. And the ethics that she have given me, all of this have played a very important part in my life of making me the human I am today. In terms of money, in terms of love, in terms of how to give love, in terms of when to not do wrong with people consciously, all of these thought processes has been given to me by her. तो अगर आप पीछे देखना चाहेंगे, ऐसी कौन सी गलतियां है जो आप रिपीट नहीं करना चाहेंगे अगर आपको वापस वही टाइम स्पेंड करने दिया जाए 20-21 साल से अभी तक का? आई डोंट, अगर मैं वापस जाऊं तो मैं किसी भी ऐसी चीज़ पे दोबारा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूँगी जिसका मुझे ऑलरेडी गट से पता है इसका कुछ नहीं होना है. ये गट को सुनते कैसे हैं? गट को तो सारे आंसर पता होते हैं ना. गट इज सबकॉन्शियस माइंड, गट इज गॉड, यू नो दैट डेफिनेशन. तो इतना करेज कैसे लाते कि हर बार आप गट की बात सुन पाओ और अमल कर पाओ उस बात पे? हाउ डू आई पुट इट, आई मीन पहले ये बात मुझे भी नहीं पता थी और ये सेम सवाल मेरे लाइक दिमाग में होता था कि यार गट को कैसे सुनते हैं यार, ये कैसे होता है. बट देन आई फील हाउ आई लर्नड इट इज थ्रू एक्सपीरियंसेस ऑफ फेलियर्स, राइट. व्हेन यू फेल 100 times एंड यू आर लाइक यार उस समय पे यही सोचा था, एंड देन यू अंडरस्टैंड योर बॉडी, वो क्या आपको बोल रही है, क्या आप शिवर कर रहे हो जब आपके साथ कुछ हो रहा है, क्या आपको वो गलत लग रहा है इवन फॉर 1 second, कोई भी चीज़ क्या वो सही लग रही है, आर यू काम व्हेन यू हैव हर्ड समथिंग. ऑल ऑफ दिस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ अंडरस्टैंडिंग हाउ योर गट गोना वर्क फॉर यू. फॉर मी, जब फॉर एग्जाम्पल आपने मुझे बोला ऐश्वर्या वुड यू लाइक टू कम फॉर अ पॉडकास्ट, आई वॉज वेरी काम, आई वॉज लाइक लेट्स गो. अगर मुझ में एक भी क्वेश्चन आता अंदर से तो मैं अब शायद एक सवाल और करती. सो यू हैव टू रियली अंडरस्टैंड हाउ योर बॉडी, वॉट योर बॉडी इज टेलिंग यू एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. दैट इज वॉट इज वेरी इंपॉर्टेंट. नहीं, हम जब गट के अगेंस्ट जाके कुछ करते हैं नॉर्मली हमें कोई चीज इन्फ्लुएंस कर रहा होता है, राइट. इट कुड बी सोसाइटी, इट कुड बी फैमिली, इट कुड बी आवर ओन assumptions ऑफ आवर ओन वैल्यूज. वरना तो animals normally follow the gut, right, in everything that they're doing. And but human beings में 5 और layers आ जाते हैं जिसके कारण हम उसको follow नहीं कर पाते. तो मेरा सवाल ये है कि गट को follow करते वक्त क्या हमें societal assumptions of things हटा देना चाहिए अगर हमें लग रहा है कि यही सही है? Absolutely. मैं नहीं सोचती. अगर मुझे लग रहा है ये मेरे लिए सही नहीं है, आई हैव जस्ट टोल्ड यू दैट आई रैन अवे फ्रॉम अ मैरिज दैट आई वाज अबाउट टू गेट इनटू. आई रैन अवे फ्रॉम इट बिकॉज माई गट वाज नॉट अलाउइंग फॉर इट. आई वाज नॉट, मतलब वो लाइक प्रिपेयर्ड फॉर इट इवन दो इट वाज माई इनिशिएटिव. आई वाज लाइक इफ इट इज नॉट गोना गो राइट, आई एम नॉट गोना बी हियर नो मैटर व्हाट हैपेंस. आई हैव हर्ट अ लॉट ऑफ पीपल बट देन नाउ दे आर हैप्पी बिकॉज आई न्यू द आउटपुट. If I know that one step of mine can change everything for people, I will take that right step. No matter for time being what somebody gonna feel. And I guess this everybody should follow in terms of their guts and their calls that they take for their lives. अगर कोई चीज़ सही नहीं लग रही है वहीं रोक दो. कोई ज़रूरत नहीं है उसे करने की. कोई बात नहीं, जो होंगे लाइक कॉन्सिक्वेंसेज, हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स हैं. Accept them and move forward. Great. Sassiest
नाम बहुत अलग है, और ये नाम सुन के भी यू फील लाइक नोइंग मोर अबाउट द ब्रांड कि क्या करती है ये ब्रांड। तो पहले थोड़ा नाम के बारे में बताइए, क्या कहानी है, उसके बाद ब्रांड क्या करती है उसमें भी चलेंगे। सैसिएस्ट का नाम, सैसिएस्ट का मीनिंग बेसिकली शेमलेस होता है। शेमलेस उसका सिनोनियम होता है केयर फ्री। अच्छा। तो व्हेन आई वाज थिंकिंग अबाउट द नेम, मुझे इंडिया से उन्हीं के लहजे में बात करनी थी, नंबर 1। नंबर 2, जब भी हम सेक्स की बात करते हैं तो ये बात शेमलेस लोगों के लिए नहीं है। ठीक है, ये बात वो लोग, ये बात ऐसी नहीं है कि अगर मैं कर रही हूँ तो मैं शेमलेस हूँ। मैं केयर फ्री हूँ, इसीलिए मैं बात कर पा रही हूँ। आई एम नॉट fearful about talking sex to anybody because that's a part of your life. And that's what sassiest means. It can be sex, it can be your life in like general, because people don't even talk about their lives normally. True. To people at times, and that's why we are facing loneliness in the country at this point. So I guess there needs to be some I was thinking about a name जो एक मैसेज पास कर सके लोगों को, और उसमें जब कोई नाम बोले तो दम भी हो। Simply that. Sassiest. I am sassiest. It's just that. थोड़ा अपने जर्नी के बारे में बताइए सैसिएस्ट का। कौन से ईयर शुरू हुआ, ब्रांड करती क्या है, क्या प्रोडक्ट्स है आपके, क्या सर्विसेज है, और अभी कहाँ पहुँची? सो हम इंडिया के पहले डॉक्टर बैक ब्रांड है सेक्सुअल वेलनेस स्पेस में। इसका क्या मतलब है डॉक्टर बैक? मैं बताती हूँ। वी आर केटरिंग टू विमेन इन LGBTQ लाइक कम्युनिटी इन इंडिया। अच्छा। स्पेसिफिकली। अच्छा। डॉक्टर बैक का मतलब ये है कि जो भी हम कंपनी में लॉन्च करते हैं वो डॉक्टर्स से अंडरस्टैंड करने के बाद करते हैं कि ये बॉडी मसाजर will be good for the female or not, because it's too intimate for her to use. Number 1. Number 2, in India, 1 out of 15 women, they go through some sort of painful sex or like vaginismus issue in their lives. 1 out of 15? 1 out of 15, yes. So we also take care of that aspect in the brand. बिकॉज जब भी पेनफुल सेक्स की बात आती है कि सेक्स करते वक्त दर्द हो रहा है एक औरत को, वो बात ही नहीं कर पाते अपने पार्टनर के साथ भी। सो वी वांटेड टू क्रिएट दैट सेफ स्पेस जहाँ पे एक औरत और एनीबडी फ्रॉम LGBTQ कम्युनिटी विल नेवर हश अबाउट देयर सेक्शुअल हेल्थ, देयर प्लेजर, देयर ट्रॉमाज, ऑल ऑफ दैट। दे शुड हैव दिस वन सेफ स्पेस। जो सैसिएस्ट आपको दिख रहा है, इट्स ऑल अबाउट दैट। So do you also encourage conversations? Matlab, yes. Do you have counselors, kind of people for the conversation? How does that work? It works. It is very simple. You buy anything from us, you get one free like consultation any which ways. And you can book one-on-one consultations with the doctors as well. Or you can take like packages which are existing to solve your healthcare issues that are needed for you. It's very simple for you to just visit sassiest.in and pick your things. It's all online? You have offline stores? Online. Okay. Everything is online. Okay. Give us a sense of how big your company is right now. We are right now at a 12 CR ARR at this point of time. Okay. And how does the next few years look like from a projection perspective? I am willing to get to 100 CR in next 3 years. Oh, that would be crazy. Yeah. More than the numbers, what kind of stories are you making right now in terms of the impact that your brand has? Sounds like a very, very impactful brand, something that we don't talk about, especially for the community that you're talking about. Yeah. And something that's very, very relevant, still not talked much or as much as it should be. It's becoming better. तो इम्पैक्ट के बारे में थोड़ी कहानियाँ बताइए हमें, किस तरह की कहानियाँ बनती है आपके कंपनी में? कहानियाँ ये हैं, सबसे पहले तो मैं एक चीज़ बताऊँ, मेरा ना हर महीने का एक काम रहता है, 25 कस्टमर्स उठाओ लिस्ट में से और कॉल करो। खुद बात करते हैं? खुद बात करती हूँ। अ लॉट ऑफ माई कस्टमर्स, दे नो मी, दे इवन सेंड मी टेक्स्ट्स
कि अब मेरे साथ ये हो गया है, नाउ व्हाट टू डू. सो आई गेस दैट्स देयर. कहानियाँ इस तरह की हैं कि फ्रॉम एज ऑफ 21 where a female want to have sex and don't know what to do, she comes to us and understand what all to be taken care of when she's Achha. getting into the sex for the first time. From condoms to lubes to will it pain or not pain, all of that. Fun things. But then let's get serious a bit. There are women who have not had sex for like 5 years, 6 years. Because एक केस था, I will let you know about that. One woman came to us. She gave a birth to a child, and for approximately 5 years, अपने पार्टनर के साथ में उन्होंने सेक्स नहीं किया था. And she was very, very fearful when she came to us. She was like, I don't know how to handle it now. मेरा मन नहीं कर रहा है, and it was purely a libido problem. अच्छा. That she was facing for 5 years. So our doctors planned her package. They helped her, and now she's having a life which she really wanted in terms of sex and everything else, along with the child. And now she knows how to handle her sexual life, even if she plans another baby. Like, to be honest. So I guess this is the kind of impact, and there are a lot of stories, to be honest. बहुत सीरियस भी चले जाते हैं लोग. बहुत सारी like चीज़ें हैं कि this guy have ditched me, or I am not feeling like having sex with like anybody, or I was with this person, this guy have ditched me, he has sent a benchmark for me in sex, now what to do. So women of every kind from every area, we are catering to a lot of things, because I'm sure if some female gonna listen to this what I'm talking right now, they'll be able to connect instantly कि oh yes, मैं भी कुछ ऐसा ही फेस कर रही हूँ. तो मैं कॉल करूँ साइसिस्ट को? कर लो यार. आ जाओ, I'll help you. It's like that. ऐसा बोला जाता है that and you correct me if I'm wrong, that females normally went out in 3 ways. One is for their subordinates, जो in terms of organizational hierarchy उनके नीचे है, and गुस्सा उन पे निकलता है. या फिर on their loved ones, जिनसे वो बहुत close हैं, गुस्सा उन पे निकलता है. या फिर on themselves, which leads to anxiety and depression over a period of time. That's true. And when I'm hearing from you, what I hear is leave some opportunities, capture the ones that you can get. Yes. Try and have constructive sources of venting out. What's your suggestion for women listening आज के podcast को? कि बहुत सारे उनके somehow struggles comparatively ज़्यादा होते ही होते हैं. And मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि हमारे शो पे भी I think 20 episodes लाइव हुए हैं, उसमें से 7 से 8 women entrepreneurs रहे हैं. और हर मोड़ पे कल्चरली भी कोई ना कोई रोड ब्लॉक आया है एज कम्पेयर टू मैन. उन्हें या तो जज किया गया है, बहुत लाइटली लिया गया है, या फिर कुछ ना कुछ सरकाज़म या तानों से वो किया गया है वेलकम. तो व्हाट्स योर सजेशन फॉर विमेन लिसनिंग टू दिस? अरे मत सुनो, बस इतना ही. सुनो ही मत, सुनो फालतू है सब. मेरे को भी बोला है लोगों ने, बिजनेस की बात करती हूँ, यू आर 31 years of age, शादी का क्या प्लान है? मैंने कहा पहले हम फंडिंग की बात करें, उसके बाद शादी की बात करेंगे. शादी नहीं करनी मुझे. शादी जब करनी होगी तब हो जाएगी, लेकिन शादी का बिजनेस से कोई ताल्लुकात नहीं है. यू नीड टू बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. दिस वर्ल्ड इज नॉट फॉर वीक पीपल आउट देयर, एंड दैट्स अ हार्ड ट्रूथ. यू हैव टू टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ. एंड टू बी ऑनेस्ट, व्हेनेवर आई टॉक अबाउट सेक्सुअल हेल्थ, टू बी ऑनेस्ट जी, आई ऑलवेज से दैट भाई आज I have had a masturbation, tomorrow I'm gonna go and like win the world. That's for me. Okay? I don't care about the world, what they think, what they say, how they're gonna judge me. I really don't bother about that, because I know myself. I know what kind of a personality I am. Nobody can point a fingers at me unnecessarily, and that's what also probably intimidate men. So it's okay. नहीं Aishwarya, I'm so happy you're speaking the way you are, and
when I'm thinking of the women Hmm. that I know Hmm. or are in my circle, I wish they can. निकलना पड़ता है यार bubble से. It's not a cakewalk again. It's not a cakewalk. But you have to come out of it. No Were matter you what. always like this? Something No. changed you? Life The changed experience. me. Yes. Life changed me. My guy, जब ये सैसी शुरू हुआ, जी. सैसी स्टार्ट ही इसीलिए हुआ और ये पूरा पर्सपेक्टिव बदला ही उसके बाद है. He said few lines to me and not really good to hear words to your, in your life from anybody which is an outsider or probably insider. ऐसे शब्द किसी भी लड़की या किसी भी लड़के को नहीं सुनने चाहिए किसी से भी, which is degrading your body, mind and soul. Okay? And I was like, okay, you have said this to me. I got up and I just said one thing, I will show you how it looks like. And Sassy started. That point. So everybody gets those, turning points in their lives. How they can use it to build something, or just say I'm unlucky, I've got the worst person in the world. Perspective, right? It's perspective. How you're taking things, and I am a bloody opportunist. Dude, I pick opportunities like this. You take me somewhere, some like ये flower दिख रहे हैं, बोलूँगी यार एक flower उठा लेते हैं, मैं खुद को दे दूँगी मैं. I give flowers to myself because I will not depend upon a man to give me a flower. Sorry. It's like that. Beautiful. इंडिया जैसे कंट्री में जहाँ पे विमेन्स सेक्सुअल प्लेजर के बारे में बात ही नहीं होती है, और होती है तो एकदम क्लोज डोर्स में होती है. इनफैक्ट अभी जो चमकीला मूवी आई थी, जहाँ पे वो गाना जो रिलीज हुआ था वेयर विमेन वर सिंगिंग अबाउट देयर ओन प्लेजर, भी बड़ी मुश्किल से रिलीज हो पाया था, राइट? एंड द मूवी ऑल्सो गॉट डिलेड बाय लॉन्ग टाइम बिकॉज इट वॉज शोइंग अ लॉट ऑफ in people's words obscene stuff, which actually it was not. It was the reality that it was showing. Yeah. आपको कभी ये नहीं लगा कि मैं एक सेक्सुअल वेलनेस ऑफ विमेन के बारे में ब्रांड लॉन्च कर दूंगी और ये चलेगा नहीं हमारे देश में? लगा तो क्या, नहीं चलेगा तो फर्क नहीं पड़ता. ट्राई नहीं करेंगे तो पता नहीं. 3 साल हो गए यार, अब कहाँ रुकेंगे हम? शुरू का डर था, आया और चला गया. मुझे फ़र्क नहीं पड़ता. मैंने सोचा था इस बारे में, डर भी लगा था भाई, फियर ऑफ मिसिंग आउट सा हो गया था लाइफ में. लेकिन कंसिस्टेंसी, परसिस्टेंसी और होता है ना जज्बा, पैशन, करके रहेंगे नो मैटर व्हाट कम्स, वी विल जस्ट डू इट. I guess that's what in me for Sassiest. I really want to see that one smile हर एक औरत के फेस पे ना, मतलब लाइफ में वो कर दूंगी तो मैं बस मर सकती हूँ प्रॉपरली. आई एम गुड. 10 लाख को टच करना है. 1 million. इसके पहले नहीं मरूंगी मैं. It's that. You actually sound like a messenger. ऐश्वर्या, हर दूसरे दिन गवर्नमेंट कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है इस पे, एंड रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है एज इन व्हाट यू हैव फ्रॉम अ प्रोडक्ट पर्सपेक्टिव आल्सो, कि आप ये सेल ओपनली नहीं कर सकते, इसकी मार्केटिंग में आप ये वर्ड्स यूज नहीं कर सकते हैं, एटसेट्रा. डू यू थिंक दैट विल एवर बी अ चैलेंज? तो नहीं करेंगे पर बेच लेंगे. कोई और वे आउट लाइक आ जाएगा. सेक्स तो बंद नहीं हो रहा है इंडिया में, राइट? हम मुश्किल ही बंद हो. 1.4 से 1.5 पहुंचने वाले हैं. आई नो, राइट? हर एक सेकंड में बच्चा पैदा हो रहा है, ये तो बंद नहीं हो रहा है. राइट. सुसाइड केसेस बढ़ते जा रहे हैं, डिवोर्स केसेस लाइक बढ़ते जा रहे हैं, जिसमें से 40% जो हो रहे हैं वो सेक्सुअल इनकम्पैटिबिलिटी की वजह से ही हो रहे हैं, राइट? 400 मिलियन सिंगल्स हैं इंडिया में जो बढ़ते जा रहे हैं तादाद पे. क्यों? क्योंकि अब उन्हें शादी नहीं करनी है. उनका माइंडसेट पर्सपेक्टिव बदल गया है एक शादी को लेकर. 400 मिलियन. Crazy. It's probably more. This is not an accurate number. Because 2011-2022 के बाद अब जो आएगा वो तो पता चलेगा like exactly कितना एक्चुअल है. जिसमें से 300 के आसपास तो आदमी ही है. हाँ, I'm sure. 100-125 के आसपास औरतें. आधे तो मेरे इंजीनियरिंग कॉलेज के दोस्त हैं. Thanks. So I guess it's that. And government भी
बेवकूफ नहीं है यार, लेट्स जस्ट पुट इट दैट वे, दे आर वेरी स्मार्ट, इंटेलिजेंट स्मार्ट पीपल सिटिंग देयर। सब कुछ ऐसे ही नहीं होता कि गवर्नमेंट ने बोला ये टैबू है तो उसे टैबू बना दो, नहीं हो रहा है भाई ऐसे काम। तुम्हारे पर्सपेक्टिव से गवर्नमेंट नहीं चल रही है, गवर्नमेंट के वे से तुम चल रहे हो, लेट्स जस्ट पुट इट दैट वे। सो अगर कुछ चीजें आएंगी भी तो उसके वे आउट्स भी आएंगे साथ में। अगेन एवरीथिंग हैज अ प्रो एंड कॉन। इफ ब्रांड्स लाइक अस आर डूइंग 100 CR a year, or 1 billion of the market has been catered by few brands already in India, how can government stop it like so randomly coming up and placing some things and like it's banned? It's not possible. It's an economy at last. उन्हें भी इकोनॉमी भी चलाना है। Yes. I agree. आपने बोला $1 billion के भी ब्रांड्स है, माई म्यूज इज एन एग्जांपल ऑफ दैट। आपको लगता है कि कंपटीशन लाइक दैट विल ईट इनटू द स्मॉलर, कंपैरेटिवली स्मॉलर ब्रांड्स, or all can exist in harmony? I guess competition exists for that. To fight eye to eye, neck to neck. अभी मजा है। जब तक हम सारे ब्रांड्स आके, I guess I really appreciate brands like My Muse, Leases, That Sassy Thing, Love Depot by TTK Healthcare, I Am Besharam, Sangya. These all are brands. और अगर हम लोग नहीं होंगे तो ये कैटेगरी बिल्ड ही नहीं होगी। आप कुछ भी कर लो, हम सबका होना बहुत इम्पोर्टेंट है। अब इसको कंपटीशन की तरह देख लो या फिर ऐसे देख लो कि मतलब कोलैबोरेशन हो सकता है क्या? इट्स ऑल इन योर आईज। फॉर द कस्टमर तो कोलैबोरेशन ही हो रहा है एक तरीके से, क्योंकि उनके पास सारा और आगे जाके बिजनेस में भी हो सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। राइट, वी ऑल आर गोइंग टुवर्ड्स द सेम जर्नी। राइट, and that's how brands are built. That's how categories are like created in India so far, or in the world anywhere. वंडरफुल। आपको ये नहीं लगता है वैसे ऐश्वर्या कि सेक्सटर्स आ जाएंगे तो पार्टनर्स की जरूरत पड़नी बंद हो जाएगी आफ्टर पीरियड ऑफ टाइम? Oh no, not at all. This is a pure myth. Okay, after using a vibrator or a massager or anything of that sort, you rather feel the need of a human touch. It's never gonna go away. It's a myth that you feel कि ये यूज़ किया तो मतलब कभी मुझे कोई इंसान नहीं चाहिए, ऐसा नहीं है। You would need a person more, you would need a body more, but you will be conscious enough what kind of soul you want now. Beautifully put. What kind of soul do you want now? Yeah. You don't want everybody. इतनी एडुकेशन की ज़रूरत है। The more I'm hearing from you, मुझे और लग रहा है कि एडुकेशन इज द की इन दीज थिंग्स। हमारे देश में तो ओ माय गॉड रिलीज करने में लोग रोक देते हैं। हाय 5 बार ही देख चुकी हूँ मैं। हाँ, इट्स वेरी वेल मेड। आई एम टॉकिंग अबाउट द सेकंड पार्ट व्हिच वाज ऑन सेक्स एजुकेशन। तो इसमें आपका क्या प्लान है? हाउ डू वी काइंड ऑफ डेमोक्रेटाइज एजुकेशन इन दिस स्पेस, इफ यू हैव अ थॉट? दैट्स समथिंग आई गेस बड़ा ही सिंपल सा प्लान है। इसमें कुछ ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है और कोई प्लान भी नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। इट्स जस्ट दैट आई हैव अ विजन टू केटर टू एवरी साइड ऑफ द कंट्री इन देयर लैंग्वेजेस, एंड दैट विल डू इट्स ओन जॉब इन देयर लैंग्वेजेस। यस, बिकॉज आई डोंट थिंक इंग्लिश इज द ओनली लैंग्वेज, हिंदी इज द ओनली थिंग। There is Tamil, there is like Karnataka, there are a lot of other like languages existing in India. We are like culturally very vast. We need to use that to bring knowledge and education out there. And government has been trying this, to be honest, so far. In their sex education like curriculum that goes into the schools. Right. In that it's not only about menstruations, to be honest. It's a lot beyond that we are trying to do. If you read that document from the like the government out there, but they don't know how to talk to children. I guess rather than education from random people, we need more such teachers out there in the schools as well to teach kids who can literally train them और educate them about this aspect, because अभी तक किसी को बात करनी नहीं आती है बच्चों से। Are you advocating कि हमें schools में ये subject डालना चाहिए? Very absolutely. I mean, कैसे इसको मैं
और दम से बोलूं, इसकी बहुत बहुत ज़रूरत है। 14 साल की उम्र से इंडिया में सेक्स हो रहा है, एंड दिस इज गवर्नमेंट डेटा, मैं अपने मुंह से नहीं बोल रही हूँ। और अनवांटेड pregnancies is one of the major challenge in India at this point of time in the healthcare system. And we need to cater to that in a very right format. So until you educate children in the schools itself, one day will come that India will not be able to handle this. And the day is not too far from us now. Because we are the people who adapt Western culture very fast. This has been a track for us. So I guess this is a very much of a need to do that. ये प्रमोट करने के लिए कभी बैकलैश नहीं मिला है फ्रॉम द ऑडियंस, फ्रॉम द गवर्नमेंट, बिकॉज यू आर प्रमोटिंग समथिंग लाइक दिस? गवर्नमेंट तो नहीं, खैर ऑडियंस से, कस्टमर से, कि नहीं आप हमारे बच्चों को गलत सिखा रहे हो। अब बच्चे कहाँ से, बड़े ही सीख जाए पहले यार। हाँ। बड़े ही सीख जाए, बच्चों में तो अभी हम पहुंचे नहीं है, पहुंचेंगे, उधर भी जाएंगे, ठीक है, वो भी टारगेट बचा हुआ है। लेकिन अगर बात रही बड़ों की, तो यार बड़ों को एजुकेशन की कितनी ज़रूरत है। रिसेंटली एक कमेंट आता है मेरे पास, अरे यार इसको ना बीप बीप करना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है, मैं बोलने जा रही हूँ अब, तुम हथनी आओ, तुम्हें हाथी का चाहिए, बंद कर दो ये ब्रांड, ठीक है। इस तरह के वर्ड्स आते हैं। और दिस इज, कोई स्लट बोल के जा रहा है, कोई कुछ बोल के जा रहा है, भाई तुम दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, तुम क्या बात कर रहे हो, किससे बात कर रहे हो, तुम देख रहे हो, तुम क्या बोल रहे हो। वो दिमाग ही नहीं है लोगों में अभी फिलहाल। ऐसे बहुत कैसे डाले ये दिमाग है, कैसे डाले ये दिमाग? टाइम के साथ आएगा यार, यू कांट फोर्स इट। मेरे को ऑडियंस मिल रही है जो समझ रही है, मैं इन जैसे इक्का दुक्का पे फोकस क्यों करूंगी? लेट देम गो, लेट देम कम, लेट देम गो। आपका रियल टारगेट सेगमेंट कौन है? कौन सा ऑडियंस आपके हिसाब से, आप जब अपना कस्टमर पर्सोना बनाते हो तो कौन सा ऑडियंस आपको एग्जैक्ट फिट करता है, जो समझ जाता है क्या है आपका प्रोडक्ट, खरीद भी लेता है, यूज भी करता है? व्हाट इज दैट पार्ट ऑफ भारत? Women who are aware and who are taking care of their health, and also men who are aware. This is also aware, जो already है वो आप कह रहे हैं। Aware from open like mindedness जिसे बोलते हैं ना, वो अगर लोगों में है वो समझेगा और वो लेगा। क्वेश्चन आज फिर वहाँ पे नहीं होता है, बल्कि वो ज़्यादा क्यूरियस है अंडरस्टैंड लाइक करने के लिए, अच्छा से यूज़ कैसे करना है, हाउ डू आई यूज इट विद माई वाइफ और विद माई पार्टनर, or can I add something else with it? A lot of kinks are there, to be honest, to be catered to. I'm sure. Yeah. Okay. तो ये अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग कल्चरल नॉर्म्स है, राइट? अब अगर आप ओपननेस की भी बात करो, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, मैं इंडिया के 6 अलग अलग स्टेट्स में रह चुका हूँ, तो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में कल्चरल ओपननेस भी बहुत अलग अलग है, राइट? तो आप उस हिसाब से अपने प्रोडक्ट्स को कस्टमाइज करते हो कि मैं अगर ये पंजाब में बेच रही हूँ एज कम्पेयर टू मैं केरला में बेच रही हूँ, एज कम्पेयर टू मैं बंगाल में बेच रही हूँ, अलग होना चाहिए? पंजाब से तो मैं पंजाबी में बात करती हूँ भाई। ये मैं हूँ, ठीक है। यस, पंजाब के लोग वैसे बहुत ज्यादा ओपन माइंडेड लोग हैं, अंडर एस्टिमेट नहीं करते हैं उनको, इवन बैंगलोर, बट तरीके अलग हैं। कोई अब पंजाब के लोग ना एक्सप्रेसिव बड़े हैं, ठीक है, उन्हें अरे कोई नहीं, खुश है ना, कर तो तेरे को जो करना है, ऐसे वाला आ जाता है, ओके। और बैंगलोर में आ जाता है, अच्छा ठीक है ये आ गए, इसे आप वहाँ पे रख दो, थैंक यू सो मच, ओके। देयर इज अ सटलनेस, बट है सब वही, लाइक इवेंचुअली एवरीबडी इज वेरी एक्साइटेड in their lives to try something new in their sex lives, but just a way to handle it is different. I should put it like that कि बस सेल करने का तरीका अलग है उन लोगों को। कईयों को थोड़ा सा ब्राइट चाहिए, कईयों को थोड़ा लाइट चाहिए। It's like that. You also train your people accordingly कि आप यहाँ हो तो इस हिसाब से इसको ध्यान रखना culturally. Yes, we do. Whenever we speak to our doctors, वैसे डॉक्टर्स को यार ज़्यादा बताने की ज़रूरत भी नहीं होती है, उनके साथ ट्रेनिंग थोड़ी सी अलग लेवल की होती है। हमारे डॉक्टर्स खुद जानते हैं अगर कोई इस साइड से आया तो उससे कैसे बात करनी है, और डॉक्टर्स भी उसी हिसाब से वी अलाइन, टू बी ऑनेस्ट। वी आर ऑल्सो वर्किंग ऑन दैट साइड ऑफ द बिजनेस वेयर वी विल onboard a lot more like doctors from multiple areas. That is also in terms happening at this point of time.
because that's where we felt the gap is at this point of time. So we were like, we need to onboard doctors from like Bangalore, from like Punjab, and Local cater to doctors that भी होने चाहिए, yes, cater ताकि to वो उस that हिसाब से audience. बात कर पाए. Correct. हाँ, That's there. Interesting. क्योंकि वो लोगों को फिर समझदारी भी उस लेवल की वहीं से आती है कि अच्छा मुझे डॉक्टर, लेकिन जो जिस तरह का ट्रेनिंग डॉक्टर के साथ होता है वो ऐसा होता है कि दे नीड टू बी अंडरस्टूड कि कस्टमर को या पेशेंट को ट्रीट कैसे करना है, उनसे बात कैसे करनी है, बिकॉज वी आर व्हाट वी आर एज अ ब्रांड, वी गिव लव. ओके, हम प्यार ही देते हैं, प्यार ही लेते हैं. तो मेरे डॉक्टर्स का भी यही है, भाई बस प्यार से उनसे बात कर लो, बाकी कुछ नहीं चाहिए मुझे आपसे, बाकी सब आप मुझसे ले लो. इट्स दैट. ट्रू. आपके दो तरह के कस्टमर्स है, एक विमेन है एंड यू मेंशन्ड LGBTQ आल्सो एज अ कम्युनिटी. यस, मेन आल्सो फॉर देयर पार्टनर्स. मैन ऑल्सो फॉर देयर पार्टनर, आई एग्री, बिग वन. तो आपका ब्रांड फोकस डाइल्यूट नहीं होता है मल्टीपल कैटेगरीज संभालने में? इफ इट कुड हैव बीन वन, इट वुड हैव बीन मच मोर फोकस्ड. या टू बी ऑनेस्ट एक ही है. LGBTQ इज अ पार्ट ऑफ इट. मैं उसे अलग समझती नहीं हूँ. वी आर अ वेरी इंक्लूसिव ब्रांड व्हेन इट कम्स टू दैट. और ये एक साइड है इंडिया का जो अभी नर्चर हो रहा है, and we want to be the part of that nurturing here. इंडिया में approximately 17 करोड़ लोग हैं जो open हैं about their you know that who they are at this point of time. But बहुत बड़ा ऐसा ऑडियंस है जो अभी भी समझ नहीं पा रहा है कि वो क्या है या वो क्या चाहते हैं अपनी लाइफ से, right? So I guess this is what we as a brand want to understand where India goes in this aspect. और उस LGBTQ community में females तो हैं ही, males भी हैं, trans भी हैं. There are so this is a huge category that we want to understand how it's gonna work. And इतना कुछ बड़ा टास्क नहीं है हैंडल करने का, to be honest. और जब टाइम आएगा तब समझ लेंगे. Lot of overlaps आप कह रहे हैं. A lot of overlaps already. Products also. डॉक्टर्स को बात भी वैसे ही करनी है, सब चीज़ें भी सब वही हैं, तो कुछ अलग है नहीं. समझिए. थोड़ा बिजनेस के बारे में अगर समझे, आपने जब शुरू करा था एंड अभी भी नाउ दैट यू आर एक्सपैंडिंग एंड ग्रोइंग, गैप है कहाँ इंडिया सेक्सुअल वेलनेस मार्केट में फॉर पीपल हु वुड वांट टू गेट इनटू द सेम स्पेस? तो व्हाट्स द मार्केट गैप दैट दे आर लुकिंग एट? यार अब तो फिलहाल मार्केट में केटर करने के ज़्यादा गैप बचा नहीं है, टू बी ऑनेस्ट. वाइट स्पेस कुछ मिल जाए तो a person can find, but I guess brands have already there are brands who are catering to all the gaps at this point of time, from Ayurveda, if you see Sukham being there, Bold Care, for men I'm like talking about Man Matters is there for men. Yes. Score is there. Durex is now coming up with their like pleasure things for men, right? Men are covered in all the aspects. When it comes to pleasure and for like female, there are My Muse and everything, that sassy thing, Lizus and everything is there. For women's healthcare, we are there. Proactive for Her is there. We are catering to that. I guess well-being nutrition have started catering to sexual health for women in terms of this. So I guess brands are catering to it already. White space, pata chalega aage jaake as the category grows. But you're saying the market is big if people want to get into? Absolutely, it's huge. There's a lot of talk about sex tech now, right? Med tech, sex tech. What's your opinion on that? How does tech play a role in this? So technology have multiple aspects to female health, to be honest, overall. Sex tech is about toys and how we use them, and the technology we're gonna bring into that to understand if a female had an orgasm or not. Acha. Right? If she's having a right menstrual cycle, to be honest, a lot of it comes into this in a healthcare perspective. And that's what we want to do as a brand. Bring sex tech into the mainstream med tech. I guess you must have read the article about like Sassiest also in that. Right. That's where we put that word out, that this is what our vision is, basically. To literally transform the beliefs in the healthcare system in the coming years. I will talk about that more when we go forward. Sassiest तरह के ब्रांड को स्केल करने में सबसे बड़ा चैलेंज क्या आता है? एंड देयरफॉर
आपको स्केल पर्सपेक्टिव से नेक्स्ट फ्यू स्टेप्स क्या होंगे? यार मुझे सबसे बड़ा चैलेंज मुझे ये दिखता है इंडिया में कि लोग समझ तो रहे हैं चीज़ को, बट घबरा रहे हैं कुछ भी करने से पहले कि ये मैं लूँ या नहीं लूँ। तो मेरा माइलस्टोन है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स क्रिएट करने का, एज मच एज आई कैन डू दैट, ताकि जो एक फियर है ना कि मैं कहाँ से लूँ, क्या करूँ, ये मंगाऊँ या मैं ना मंगाऊँ, वो खत्म ही हो जाए बैरियर। And I guess we all brands should do that. I guess we should create entire market committee of that sort in this category. It's like now create a distribution channels, so it can be a great. आपका टारगेट tier 1 है normally या tier 2, 3, 4 में भी है? अभी फिलहाल tier 1 है। ऑर्गेनिक मेरे पास tier 2, tier 3 दोनों से आता है। घर से छिप के आता है या ओपनली ऑर्डर करते हैं लोग? यार ओपनली करना पड़ता है, उनके पास अभी ऑप्शन कहाँ है, बट कॉल जरूर आता है कि यहाँ पे आप देख लेना प्लीज, डब्बे पे कुछ ना हो। नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता डब्बे पे, इट्स ऑल डिस्क्रीट। बट फिर भी एक फियर है लोगों में कि कुछ लिखा हुआ आ गया तो मैं ना तब से तब तक घर पे नहीं हूँ, तब आप मत भेजना, उसके बाद भेजना। तो ये सब चीज़ें होती हैं ज़्यादातर tier 2, tier 3 के साथ, बट मैनेजेबल। आपका मतलब ब्रेकअप क्या है? tier 1 का क्या परसेंटेज होगा सेल्स का? राइट नाउ इट्स 70%, 72%. Rest is from tier 2, tier 3 organic. Not bad. That is my organic it's sales. Growing. Yeah. It's growing. Yeah. Funding perspective say what are the milestones? I think you got a funding from Mr. Raj Armani. Yes. And how did that influence the trajectory? And अब आगे के क्या thoughts हैं? That influenced absolutely. Now we are looking forward to raise. Let's see when that happens. But growth doesn't stop any which ways. So we are on a growing stage. To be honest, we are growing 40% month on month at this point in time. Month on month? Yes. Oh, crazy. You're the majority stakeholder in the company? Right now, yes. Okay, fantastic. And how does teamwork happen to collaborate and bring Sassiest vision to life? You have yourself, Karishma, Dr. Nikita together. आपने काम कैसे बांट रखा है? यार I am into operations. I'm a freak about that, to be honest. To understand those hidden cost, किधर चली गई एक extra penny, किधर ₹1 कहाँ चला गया वो। I am that person. And I guess Karishma is handling marketing in the team along with me. Okay. She is a big time motivator behind that. She knows the knack behind handling team. So she is that pillar. And Nikita is handling healthcare. She's handling all the healthcare R&Ds of what we want to bring, how we should bring them, what all doctors we should talk to. That's all her things, and up with that, she takes care of team's health also. That is also one part of it. Is it intentionally all women in the leadership? Yes, intentionally. Do you intend to have men also? Absolutely. उनके बिना काम कैसे करेंगे हम? I agree. Yeah. Okay. अगले 5 से 10 साल का विजन बताइए ऐश्वर्या। मतलब सैसिएस्ट को 2035 में आप देख रहे हैं अभी यहाँ बैठ के। आप जो बोलेंगे सच हो जाएगा। चलिए तो क्या देख रहे हैं आप? I have a vision to make this brand a 1000 CR brand. 1000 करोड़ का। Yes. What will change because of that? Impact? Absolutely. 10 लाख औरतें बोला मैंने, वहाँ तक तो पहुँचना ही है। But apart from all of that, all of these numbers, I guess you will see Sassiest not only creating the impact, but also shifting societal perspectives. And जैसे मैंने आपको ही बोला कि मेरे को हेल्थ केयर सिस्टम्स को ट्रांसफॉर्म करना है, लिटरली वेयर sexual health, pleasure and education will become a core part of the mainstream healthcare in India. That is what my main vision is. और बाकी numbers तो will follow along with this, to be honest. But this is what it is. There is this thing that there is a rule book, right? Like society's invisible rule book. If this vision had to like survive, the rules had to be like redefined. I guess that's what we are doing. Fantastic. अगर मैं लास्ट सेक्शन की तरफ बढ़ पाऊँ, which is our rapid fire section. Ouch.
एंड यहाँ पे बड़े सिंपल रूल्स हैं. आपको कुछ सवाल पूछे जाएंगे, जो आपका पहला चीज दिमाग में आता है वही बोलना है. राइट? यू आर व्हेनेवर यू आर रेडी वी कैन स्टार्ट. ओके, एवर रेडी. ओके फाइन. ऐश्वर्या, सो क्वेश्चन नंबर 1, आपका फेवरेट प्रोडक्ट कौन सा है सैसियस से? लेडी लाइक इन मॉनरोज. ओके. कॉम्पिटिटर जो आप जिसको आप एडमायर करते हो? माय म्यूज. एक वर्ड डिस्क्राइब करने के लिए सैसियस को? केयरफ्री. बिगेस्ट लेसन जो आपने सीखा एज अ फाउंडर? कभी भी किसी भी ऐसी चीज पे टाइम वेस्ट मत करो जिसका तुम्हें पता होगी कोई आउटपुट है नहीं. कैसे पता लगता है जब टाइम लगाते हो? हाँ, गट. गट. Your gut tells you. We spoke about gut. Most challenging aspect आपके काम का? Breaking people's mindsets. Gosh, your go-to stress relief? Dance. हाँ, are you good at? Oh, I'm a Kathak dancer. Oh, Thanks. Fantastic. The audience doesn't know. Now they're glad to know. एक किताब जिसने आपको deeply influence किया है? I forgot the name of that book. Yeah, it's about ask good questions. Okay. A lot of किताब that's coming to my mind. Yes. But asking good questions. Yeah. Okay. अब एक मूवी बता दीजिए चलिए जिसने आपको इन्फ्लुएंस किया deeply. No, you watch movies? Not much. It's all me. What keeps you motivated every day? People, sassiest women. Customers, employees, or both? Everything. What's your advice for aspiring women entrepreneurs? Don't listen to shit in life. if they know it's shit, they would normally not listen. Fear नहीं, डरना नहीं है किसी से. किसी भी बात से डरना. जहाँ पे डर लगे बस खत्म. डरना नहीं. Okay, where do you see yourself in 15 years from now, personally, not professionally? I'll be guiding youth in multiple aspects. In India, across the globe? Across the globe. Okay, what's your last one sentence for people who are watching this episode? Don't chase people, just be yourself wherever you go. Just focus. बोलते ना वो अर्जुन की आँख कि एक बस वही है जहाँ पहुँचना है, वहाँ से फोकस नहीं हिलना चाहिए. Just focus there and you're good to go. बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे बढ़ता इंडिया देखो एपिसोड में आए and people would have benefited a lot. It's a very powerful conversation that we had today. I hope so. And I'm wishing you all the best for the journey. Thank you. Thank you. कैसा लगा आपको एक ऐसा एपिसोड जहाँ पे we heard her real struggles? उसने 21 साल की उम्र में क्या फेस किया, जब अपनी कंपनी चालू करी और उसके बाद वो फेल हुआ, उसके बाद क्या फेस किया. सैसियस चलाने में हर वुमेन के चेहरे में वो सेटिस्फैक्शन, वो हैप्पीनेस देखने में वो क्या फील करती है, क्या एक्सपीरियंस करती है, हर स्ट्रगल्स, दोस पॉइंट्स जहाँ पे हर उस औरत ने जो ये एपिसोड देखा है वो कनेक्ट कर पाई. मुझे रियलाइज हुआ खुद के लिए भी, एवरी वुमन दैट आई नो would truly benefit from an episode like this. Hats off to founders like Aishwarya who are doing real work, real impact while building a business for Bharat. And that's what Badhta India Dekho is all about, right? Don't miss the future episodes also. And yes, don't forget to subscribe. All the best.